اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زیبا نسیم۔ آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تک ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے، کیا کیا عبادات کرنی چاہیے جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا موقع مل سکے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بہت سارے لوگ فضیلتوں سے تو واقف ہیں، لیکن ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر کیا کرنا چاہیے اس سے واقفیت جیسے کہ حاصل ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پر پڑی جس سے میں نے محسوس کیا کہ یہ پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، شاید کہ آپ اس پر عمل کریں اور آپ کا عمل میرے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کے اضافے کا سبب بن جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو سورہ حج کی جس آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق سماعت فرمائیں۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وہ مقررہ دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ یہ جو فرمایا گیا مقررہ دنوں میں، اس کی تفسیر کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایام معلومات یعنی مقررہ دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ والرضوان کا مذہب بھی ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کی تشریح فرماتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں ذکر اللہ کے بارے میں فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قدر و منزلت سے بڑا کوئی اور دن نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ان ایام میں کی ہوئی نیکی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اور کوئی عمل پسند ہے۔ لہذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کرو۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے ذکر، روزوں اور صدقات و خیرات کی کثرت کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کے ذکر کے بارے میں فرمایا، کلمہ طیبہ کے ذکر کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رب قدیر جل جلالہ کی بڑائی بیان کرنے کے سلسلے میں، تکبیر کے سلسلے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی تحمید یعنی الحمدللہ کے حوالے سے۔ اب میں ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر کا ثواب کتنا عظیم ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر خاص طور پر عشر ذی الحجہ میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی برکتوں سے نوازے گا، اس کا اندازہ آپ لگائیں اور اس حدیث مبارکہ سے اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔
मैं उसका तर्जमा आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते रास्तों में जिक्र करने वालों की तलाश में घूमते रहते हैं। जब वो जाकिरीन की किसी जमात को पाते हैं तो एक दूसरे को पुकारते हैं। सुभान अल्लाह, फरिश्ते एक दूसरे को पुकारते हैं और पुकार कर क्या कहते हैं, आओ अपने मकसद की तरफ, यानी मिल गए जिन्हें हम तलाश कर रहे थे। पता चला कि जब कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है तब वो तना नहीं होता, फरिश्ते भी उस जिक्र करने वालों के साथ शामिल हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। इसी के साथ फिर वो फरिश्ते जाकिरीन को अपने परों की में ढांप लेते हैं, मोहब्बत और उल्फत के तौर पर। फरिश्ते ढांप लेते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस में पेश कर रहा हूं उसका तर्जमा। फरिश्ते ढांप लेते हैं। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए, मासूम फरिश्ते जब किसी को अपने परों में ढांप लें तो आप कितना सुकून पाएंगे, जिक्र करने वाले को कितना लुत्फ मिलेगा और कितनी उसकी तबीयत के अंदर सुकून की कैफियत पैदा होगी। फिर वो अपने रब के दरबार में हाजिर होते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह अपने बंदों का हाल जानता है, लेकिन फरिश्तों से अपने जाकिर बंदों की तारीफ सुनना पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। ऐ फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया? फरिश्तों से रब पूछता है। ये फरिश्ते जब मौला की बारगाह में हाजिर होते हैं, जिक्र करने वालों की महफिल से पलटते हैं तो रब उन फरिश्तों से पूछता है, हालांकि मेरा मौला सब जानता है, लेकिन फरिश्तों से पूछने की वजह यह है ताकि जिक्र करने वालों की ज़बान से जो जिक्र अल्लाह का किया जा रहा है उस जिक्र के हवाले से भी सुने और जाकिरीन की अजमत भी फरिश्तों के सामने वाज़ेह हो जाए। तो फरिश्ते जाकिर बंदों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मेरे मौला, हम ऐसी महफिल से होकर के आ रहे हैं जिस महफिल के अंदर तेरे बंदे युसब्बिहूनक व युकब्बिरूनक व यहमदूनक व युमज्जिदूनक। रब, तेरे बंदे तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी तारीफें बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हल राउनी, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मा राउ का, नहीं मौला, उन्होंने तुझे नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाता है, कैफ लौ राउनी, अगर वो मुझे देख लेते तो उनका क्या हाल होता? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अगर वो तुझे देख लेते तो वो और ज्यादा तेरी इबादत करते, और ज्यादा बुजुर्गी बयान करते, और ज्यादा तस्बीह बयान करते। अल्लाह ताला फरमाता है, फमा यसलूना, वो मुझसे क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला, वो तुझसे जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाते हैं, क्या उन्होंने जन्नत देखी है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, नहीं, बकसम रब, उन्होंने जन्नत नहीं देखी। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो जन्नत देख लेते तो उनका क्या हाल होता? फरिश्ते कहते हैं, अगर वो जन्नत देख लेते तो वो उसकी बहुत हिर्स करते, उसके बहुत तलबगार हो जाते और उसकी तरफ उनकी रग़बत और ज्यादा हो जाती। अल्लाह ताला फरमाता है, वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मिनन नार, जहन्नम की आग से। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज गुजार होते हैं, नहीं वल्लाह, उन्होंने उसे नहीं देखा। अल्लाह जल्ल शानो फरमाता है, अगर वो उसे देख लेते तो उनका क्या हाल होता? फरिश्ते कहते हैं, अगर वो उसे देख लेते तो वो उससे मजीद भागते और ज्यादा डरते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, फाशहिदुकुम अन्नी गफरतु लहुम, ऐ फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उन सब को बख्श दिया। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह, उनमें एक शख्स था जो जिक्र नहीं कर रहा था बल्कि अपनी किसी जरूरत के लिए उनके पास आया था। अल्लाह ताला फरमाता है, ला यशका जलीसुहुम, उनके पास बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। अल्लाह अकबर। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये है अल्लाह के जिक्र का फायदा। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशरे ज़िलहज्जा में इसकी कसरत करो, और इन दिनों की इबादत, इन दिनों की रियाजत से बढ़कर अल्लाह के नज़दीक
कोई भी दिन की नेकियां इतनी अफजल व आला नहीं हैं, और उसमें खास तौर पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तकबीर, तहलील और तहमीद का जिक्र फरमाया। अब ये तहलील क्या है, तकबीर क्या है और तहमीद क्या है, इसे समझ लें। वुजू बेवुजू आपसे गुजारिश है, अशर ज़िलहिज्जा के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और गली कूचों में निकले तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये पढ़ते रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये पढ़ते रहें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस ज़बान की अज़मतों पर कुर्बान जिस ज़बान को अल्लाह अपने ज़िक्र की इजाज़त अता कर दे, और जिस ज़बान से बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह ताला उस ज़बान की बरकत से उस बंदे के क़ुलूब को और बंदे के अज़हान को, बंदे की ज़िंदगी को, बंदे की आखिरत को बेहतर कर दिया करता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए अशर ज़िलहिज्जा के अंदर कसरत के साथ कलिमे तैयबा पढ़ें, कसरत के साथ अल्लाहु अकबर पढ़ा करें, और कसरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें कि ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। अल्लाह ताला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल हमें अपने रब के ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और क्या ही खूब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि अल्लाहु अकबर, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे पता चल जाता है जब मेरा मौला मुझे याद करता है। लोगों ने पूछा कैसे, तो कहते हैं कुरान मुक़द्दस में रब ने फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।